So welcome back to our channel Maths Theta. In this session, as you can see from the thumbnail, we will be doing the last part of first exercise of set. The last part of the first exercise of chapter 1 set. So let's start from the question number 8. Here you have been told in 8 part 1 to write the cardinal number of set A, where set A is equals to x is a two-digit number, sum of whose digits is 8. So see how to do. We have to write the cardinal number of set A. So first of all, we have to write what is set A according to the question. It should be a two-digit number, and those two-digit numbers sum should be 8. So in such type of sums, we write it in order so that no number can be missed. So the first two-digit number whose sum will be 8 will be 17, because you cannot start from 08, because 08 is not considered as two-digit number. 08 is a one-digit number. We have to write here two-digit number. So it will start from 1717. So if you add these two digits 1 and 7, we will get 8. Similarly, after 1 we get 2, 2 plus 6 is 8. 3, 5, 4, 4, 5, 3. After 5, 6. To make it 8, we will put 2. After 6, 7. To make it 8, we will put 1. After that 8. To make it summation 8, we will put 0. Bus. So this will be the only set available here. So what will be the cardinal number here? So the cardinal number of this set A will be, how many elements are there in this set A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the right answer to these sums will be 8. Moving to subpart 2. Write the cardinal number of the set of all integers x, for which 30 by x is a natural number. So this is very important sums. Try to understand what they have told to do in this. We have to write the cardinal number of the set of all integers of x, for which when 30 is divided by that x, it should be a natural number. So simple, the required set here will be the factors of 30. The factors of 30 means in whose table 30 is divisible. So 30 is divisible in 1's table, 2's table, 3, not 4, 5, 6. Then after that 10, not 12, 14, 15, and after 15 directly 30. So these are the factors of 30, where when we will put this value of x in the denominator, then we will get always a natural number as a result. When we will put these values of x in place of denominator x, then the resultant will be always a natural number. So what is the cardinal number here? How many number of elements are there? There are total 4, 5, 6, 7, 8. Here also cardinal number is 8. Okay, so this is the answer. Moving to third subpart. Moving to third subpart. What is the cardinal number of the set x, where x is equals to, x is a letter of the word Chandigarh, of the word Chandigarh. This is the question. So first of all, what will be the required set here of x?
Here it has been told that X should be a letter of the word Chandigarh. So what are the letters here? C, H, A, N, D, I, G. We won't repeat A, then comes R, and we won't repeat H also. So you should know that no elements are repeated in a set, whether it is an alphabet or digits. It is never repeated. So what will be the cardinal number here of set X? It should be 4 and 4, 8. Total 8 elements are there. So this will be the cardinal number in this case. Now moving to sums number 9. In sums number 9 they have told you to write true or false, and also they have told to justify your answer, why true or why false. Justify your answer. So see what is the question here in question number 1. 37, this sign means does not belongs to. This is read as does not belongs to. X is X has exactly two positive factors. So see how to do this type of sums. We have to say that whether this 37 belongs to such type of number or not, where X has exactly two positive factors. So if you see, the answer will be first of all true. The answer will be true. Let's justify it first, that how sir true, how sir answer is true. So here we can see 37 is a prime number. 37 is a prime number. Everyone knows this. And prime number has exactly two factors. And prime number has exactly two factors. Has exactly two positive factors. What are they? That is 1 and 37 itself. 1 and 37 itself. So yes, 37 has exactly two positive factors, but here they have said does not belongs to. मतलब ये गलत बात बोला है. 37 belongs to this type of set. 37 actually belongs to this type of set, because 37 is a prime number and it has exactly two positive factors. तो ये वाला बात गलत बोला है कि does not belongs to, where it is actually belonging to. So यहाँ पर right answer होगा false. मैंने मिस्टेक से स्टार्टिंग में ट्रू बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट. मैंने मिस्टेक से स्टार्टिंग में ट्रू बोल दिया था. राइट आंसर होगा फॉल्स. व्हाई फॉल्स सर? बिकॉज 37 ऐसा नंबर है जो जिसका एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर्स है, पर यहाँ पर उल्टा बात बोला है कि डज नॉट बिलोंग्स टू. ये गलत बात बोला है. दैट इज व्हाई आंसर इज फॉल्स. आई रिग्रेट, स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था ट्रू नहीं होगा, इट शुड बी फॉल्स. मूविंग टू सब पार्ट 2 नाउ. सब पार्ट 2 में क्या है? 35 belongs to X has exactly 4 positive factors. 4 positive factors. तो आओ देखते हैं ट्रू होगा ना फॉल्स. पहले समझते हैं चीजों को. तो फैक्टर्स ऑफ 35 क्या होगा बच्चों? फैक्टर्स ऑफ 35 मतलब 35 तीसरे तीसरे टेबल में जाता है. तो 35 1 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है, 7 के टेबल में जाता है, और सोचते देखना 35 के टेबल में तो जाता ही है और किसी के टेबल में भी नहीं जाता. तो क्या हम लोग बोल सकते हैं यस 35 हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स, वी कैन से दिस. और क्वेश्चन में भी यही बात बोला है कि दिस वैल्यू ऑफ x 35 बिलोंग्स टू दिस सेट where it has exactly 4 positive factors. So हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर ट्रू हो जाएगा. सही बात बोला है. थर्ड सब पार्ट 496 belongs to y. The sum of, ये बहुत अच्छा सम है बिकॉज बड़ा नंबर है ना, इसका फैक्टर्स निकालने में मजा आएगा. और मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा. द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y is 2y. तो सबसे पहले हम लोग y का फैक्टर निकालते हैं, मतलब 496 का फैक्टर निकालते हैं.
उसके बाद में समझेंगे क्वेश्चन में बोला क्या था, बाद में समझेंगे। पहले हम लोग आराम से 496 का फैक्टर निकालते, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 496 क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 496 क्या होगा। तो सबसे पहले ये 1 के टेबल में जा रहा है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में भी जा रहा है, और ये 3 के टेबल में नहीं जा रहा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो इसका आ रहा है 19 आ रहा है, सो 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 4 के टेबल में जा रहा है ये, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। 5 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। 6 के टेबल में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 48 और 16 बचा लास्ट में, तो 16 नहीं जाएगा। 7 के टेबल में भी नहीं जा रहा है, 49 जा रहा है पर 6 नहीं जाएगा। एक एक बात मैं जो बोल रहा हूं प्रीवियस थोड़ा सा बैकवर्ड करके दोबारा सुन लेना, समझ में आ जाएगा कैसे पता चल रहा है कोई नंबर से 496 डिविजिबल है या नहीं है। ये हम लोग बचपन में पढ़े थे क्लास 7-8 के स्टैंडर्ड में कि व्हाट आर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द नेचुरल नंबर्स, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप एक बार फिर से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 8, तो क्या ये 8 के टेबल में जा रहा है, हाँ ये जा रहा है 8 के टेबल में। 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 के टेबल में ये जा रहा है पहला बार, ठीक है। नाउ तो अगर ये देखो कैसे समझते हैं चीजों को, अगर ये 8 के टेबल में भी जा रहा है और 2 के टेबल में भी जा रहा है, ठीक है, और 4 के टेबल में भी जा रहा है, तो डेफिनेटली 16 के टेबल में भी ये जाएगा ही जाएगा। नाउ अब मेरा जो थिंकिंग कैपेसिटी है या जो आपका थिंकिंग कैपेसिटी है बस यहीं तक है सोचने का कि 496 तीसरे तीसरे टेबल में जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, पीछे से सोचना शुरू कर देते हैं। कैसे सर, 496 1 के टेबल में कितने बार में जाएगा, आप बोलोगे सर 496 टाइम्स में जाएगा। 496 2 के टेबल में कितने बार में जाएगा, तो आप बोलोगे सर 248 टाइम्स में जाएगा। फिर 496 4 के टेबल में कितने बार में जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1, फिर 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 124 टाइम्स में जाएगा। देख लो कैसे किया मैंने, 496 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 16, 4 4 जा 16, दिस इज हाउ आई एम गेटिंग 124। नेक्स्ट 8 के टेबल में कैसे जाएगा सर, तो वही वाला बात है, इसी तरीके से 496 डिवाइड बाई 8 कर लो, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16। सर 16 के टेबल में कैसे जाएगा, 16 3 जा 48, 16 1 जा 16। तो हमें सारा का सारा नंबर आराम से मिल गया जिसके टेबल में 496 जाता है। इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 496, कि 496 तीसरे तीसरे टेबल में जाता है। और मैंने बहुत अच्छे ट्रिक के साथ आपको समझाया है कि कैसे 16 के बाद से आप राइट हैंड साइड से उल्टा सोचना शुरू करोगे कि 496 तीसरे तीसरे टेबल में आसानी से जा रहा है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बोला था, आप क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है ये जो नंबर y है ना 496, इसका जो पॉजिटिव फैक्टर्स निकलेगा ना उसका जो समेशन है, सम ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स शुड बी 2y। तो आओ पहले सम ऑफ दिस फैक्टर्स कर लेते हैं, सम ऑफ दिस फैक्टर्स कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 31 प्लस 62 प्लस 124 प्लस 248 प्लस 496। तो यहां से क्या पता चला, देखो एडिशन कर लेते हैं, 6 और 8 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 6 27, 27 8 35, 35 4 39, 39 2 41, 41 1 42, 4 हाथ में, 4 9 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 1 29, 29 में 2 कैरी, 2 4 6, 6 2 8, 8 1 9। तो ये हमारा समेशन वैल्यू आया। अब ध्यान से देखना, हमें यही चीज बोला था कि जो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 496 है ना, जो अभी हमारा 992 आ रहा है, इट इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू 496, इट इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू 496। तो हाँ सच में 2 इंटू 496 992 होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जस्टिफिकेशन तो बहुत अच्छा से मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे दे दिया है। तो ये सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 of 496 is 2 times of 496, that is 992. I hope it is clear. Moving to question number 10 now.
आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, सॉरी, तो ले लेते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 9 का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 का एक क्वेश्चन और है, ले लेते हैं। 4 क्वेश्चन थे इसमें, वो भी ले लेते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पे, 3 डस नॉट बिलोंग्स टू x x to the power 4 minus 5x cube plus 2x square minus 112x x to the power 4 minus 5x cube plus 2x square minus 112x plus 6 is equals to 0। ये दिया हुआ अपन को है ना। तो सबसे अच्छा बात है कि क्या 3x के जगह पे डालने से 0 आएगा, देख लो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equals to 3, what will get, 3 to the power 4 minus 5 into 3 to the power 3 plus 2 into 3 to the power 2 minus 112 into 3 plus 6। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, 3 to the power 4 is 81, 3 cube 27, 27 5 ja is how much, 135 plus 3 square is 9, 9 2 ja 18 minus 3 2 ja 6, 3 1 ja 3, 3 1 ja 3 plus 6। तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा, ये दोनों ऐड करने से 99 प्लस 6 और इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, माइनस में 6 5 11 1 33 और 13 46 और 147। तो यहां पर क्या आ रहा है, 105 माइनस 471। अब कितना आ रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है, बस इतना मालूम है कि जीरो नहीं आ रहा है, बस इतना मालूम है कि जीरो नहीं आ रहा है। और यहां पर भी यही बात बोला था कि 3 डस नॉट बिलोंग्स टू x, यहां पर भी यही बात बोला था 3 डस नॉट बिलोंग्स टू x। और सच में 3 डालने से जीरो नहीं आ रहा है, 3 डालने से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। तो ये बात सच बोला है, 3 डस नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो ये बात सच बोला है, 3 डस नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग सोचे थे कि इस पार्ट में वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देख पा रहे 10 क्वेश्चन और है। ठीक है, और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा रिक्वायर्ड था, भले ही 2 क्वेश्चन हम लोग किए टोटल में इंक्लूडिंग द सब पार्ट्स, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।